کہ بزدل دشمن بھارت کا بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے معصوم بچوں پر وار۔ بلوچستان کے علاقے ضلع خزدار میں اسکول بس پر حملہ۔ ISPR کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد حملے میں 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا عبدالغنی، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، یہ افسوسناک واقعہ ضلع خزدار میں جو نوائی علاقہ ہے، 0 پوائنٹ کے قریب وہاں پہ پیش آیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ ایک وہیکل بونڈ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ حملہ کیا گیا اس وقت وہاں سے اسکول ایک بس جو تھی مقامی بچوں کی وہ گزر رہی تھی، جس کے زد میں آ کر اس بس میں سوار جو ہے 4 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور فرد بھی اس میں جاں بحق ہوا ہے جو کہ اسی وقت موجود تھا۔ اسی طرح اس میں 40 کے قریب دیگر جو بچے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی جو اسپتال ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی حالت کیسی ہے اور کیا نوعیت ہے ان کے زخمی ہونے کی؟ دیکھیں، جو زخمات آئے ہیں وہ شدید نوعیت کے زخمات ہیں، اسی لیے مقامی جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جو بچے زخمی ہوئے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک قرار دی گئی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ہولناک دھماکہ تھا جس کے ذریعے اس بس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی کچھ اطلاعات ایسی بھی سامنے آئی ہیں جن کی ابھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ میری کچھ دیر پہلے ڈپٹی کمشنر خزدار سے بات ہوئی یاسر اقبال سے، انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ انویسٹیگیشن کی جو ٹیمیں ہیں ابھی بھی موقع پر موجود ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ دھماکہ خیز مواد روڈ پر پہلے سے موجود ایک گاڑی کے اندر پلانٹڈ بم کے ذریعے ہوا ہے یا کوئی خودکش حملہ ہے، کیونکہ اس روڈ پر عموماً ٹریفک، چونکہ یہ ایک نیشنل ہائی وے ہے اور ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح کے معاملات میں سیکیورٹی چونکہ پہلے ہی اس روڈ پر ہوتی ہے اور یہ امکان کم ہے کہ پہلے سے گاڑی وہاں پہ موجود ہو، لیکن ابھی یہ تحقیقات کی جا رہی ہے تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خودکش حملہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے جو ایمبوش ہے وہ ممکنہ طور پر کیا گیا ہو اس گاڑی کو جو کہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ تو اس حملے کے نتیجے میں تحقیقات کو جو عمل ہے وہ ابھی جاری ہے۔ اس میں ابھی ذمہ داری تو کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن انڈین سپانسرڈ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو بلوچستان میں پہلے۔ اچھا عبدالغنی کاکڑ، یہ اس کا ذرا حدود و حربہ محل وقوع کیا ہے؟ اس علاقے کا ضلع خزدار ہے، یہ کافی زیادہ اس قسم کے واقعات کی زد میں رہتا ہے۔ یہ کیا علاقہ ہے اور کون کون سے علاقے اس کو ٹچ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ خزدار ایک انتہائی حساس علاقہ ہے بلوچستان کا۔ یہ جس مقام پر یہ دھماکہ ہوا ہے یہ ایگزیکٹ ایک 0 پوائنٹ کے نام سے مشہور ہے، اس علاقے کو 0 پوائنٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس 0 پوائنٹ کے قریب سے جہاں سے یہ بس نکلی ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں جب پہنچی ہے تو اس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ فاصلہ جو تھا جو کہ اس بس نے طے کیا ہے وہ 2 کلومیٹر کے قریب تھا، تو جو ہی یہ بس اس 0 پوائنٹ کے قریب پہنچی ہے اس دوران یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کی نوعیت اتنی ہولناک تھی کہ وہاں پہ مکمل طور پر جو بس ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ اس ویژول سے جو کہ موقع سے ہمیں موصول ہوئے ہیں اس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس بڑے پیمانے پر جو ہائی ایکسپلوسیو دھماکہ خیز مواد ہے، ہائی انٹینسٹی کا، وہ اس حملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے جو تحقیقات کا عمل ہے وہ مختلف پیراہوں میں اس وقت جاری ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں جو اس ہولناک حملے میں ملوث ہیں، اس بزدلانہ حملے میں ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ، بیورو چیف ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود تھے۔ بزدل دشمن بھارت نے بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے معصوم بچوں پر وار کیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے ضلع خزدار میں اسکول بس پر حملہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد حملے میں 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہماری بات ہو رہی تھی عبدالغنی کاکڑ سے، وہ بتا رہے تھے کہ انتہائی زوردار دھماکہ یہاں پر سنا گیا ہے، اور بس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دھماکہ خیز مواد کافی مقدار میں استعمال کیا گیا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ BDS اس وقت وہاں پر موجود ہے اور وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ جو تحقیقات کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی اسی طرح سے ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے چلیں گے۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کو پشت پناہی حاصل تھی۔ بھارتی ایجنٹوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بد امنی پھیلانا شروع کر دی ہے۔ ڈیفنس اینالسٹ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، جس طرح سے جو جنگ کا فرنٹ ہے اس پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، دوبارہ سے یہ وہی کام جو بھارت کی سپورٹ سے جاری ہے ہماری سرحدوں کے اندر، دوبارہ سے یہ کام شروع ہو گیا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। सुबह 7:20 पे ये वक़्वा पेश आया खुलदार के अंदर, जहाँ QRF की जो जो क्विक रिस्पांस फोर्स है उसकी सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन ज़ाहिर है जो बॉम्ब जिस तरह से ज़मीन के अंदर दबा दिए जाते हैं, IEDs होते हैं, दीगर तरीके से अब जो है वो वारदातें होती हैं। ये एक खुला इलाका है, दूर दूर तक जो है वो कुछ छोटी मोटी झाड़ियां लगी होती हैं, नजर नहीं आता, उसके अंदर दहशतगर्द छुप के बैठ जाते हैं। तो इस बस के ऊपर जो है वो हमला किया गया। जिना गैरिजन आर्मी पब्लिक स्कूल की ये गाड़ी थी, और ये जब वहाँ 7:20 पे पहुंची तो वहाँ ये एक जो है दहशतगर्दी का निशाना बन गई। इसके अंदर तकरीबन 5 बच्चे जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश की है, और तकरीबन 35 के करीब जो है वो जख्मी हैं, क्योंकि टोटल 40 लोग थे इसके अंदर ड्राइवर समेत। तो ये एक ज़ाहिर है भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए जंग से हारने के बाद अब ये बात तो हमें तय थी कि वो अब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा और जहाँ जहाँ उसके दहशतगर्दी के ताने बाने हैं वो अब अपने नेटवर्क को जो है वो फैलाएगा। लेकिन इस सारे सिलसिले में वो जल्दबाजी से काम लेगा। जब जल्दबाजी से काम लेगा तो जाहिर है फिर उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो अब अयां होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस मामले को मेरे ख्याल में हमें अब इंटरनेशनल सतह के ऊपर उजागर करना पड़ेगा। आपने देखा कि जिस तरीके से पहले हमने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमें मेरे ख्याल में मजबूत भारत के खिलाफ केस बिल्ड करना चाहिए था, वो हमने उस टाइम पे शायद नहीं किया है, जो भी उसकी वजूहात थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अब मेरे ख्याल में बड़ा खुल के इस पर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम का एक वाक़या हुआ जिसके अंदर ना कोई सबूत है ना शवाहिद, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अब दुनिया देखना यह है कि क्या दुनिया पाकिस्तान के साथ उसी तरह से इस मामले पे हमदर्दी करती है जिस तरीके से वो भारत के साथ जो है वो कर रही थी। तो ये मेरे ख्याल में एक दुनिया के लिए भी टेस्ट केस है, हमें भी पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट की है कि जिस तरह से बिहेव दुनिया भारत के साथ कर रही है, पाकिस्तान के साथ करती है या नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, उन पर भी डिस्कस करते चलते हैं। देखें, जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत बड़ी मार्केट है भारत की और उसी वजह से वो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, गो कि वो गलत भी हो, लेकिन वो अपने साथ लोगों को अपने काफ़िले में शामिल करते चलते हैं। तो अगर बात की जाए सिक्योरिटी मेजर्स की, तो जिस तरह से हमें पहले भी मालूम था कि CPEC को टारगेट किया जाना है और किया जा रहा है, और इसी तरह बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सिक्योरिटी लैप्स भी है, कोई मेजर्स लिए गए थे? देखें, जहां तक मैंने आपसे बताया कि क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी जो थी वो इस बस के साथ थी, लेकिन अब कोई बाहर से रॉकेट मारे या कोई ऐसी जो जमीन के अंदर एक्सप्लोसिव चीज मौजूद हो, उसका कोई हल नहीं है। दहशतगर्दी को अगर आप देखें तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है उसके जो बेपनाह वसाइल हैं, जो सिर्फ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसका बजट पाकिस्तान से बड़ा है, लेकिन क्या न्यूयॉर्क में होने वाला जो हमला था क्या उसको रोक पाए? क्या लंदन बॉम्बिंग जो है वो रोक पाए, बावजूद इसके कि 1 मिलियन से ज्यादा वहाँ कैमरे सिर्फ लंदन सिटी के अंदर लगे हुए हैं? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, यकीनन सिक्योरिटी लैब्स जरूर है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मीलों मील एक सड़क के ऊपर कहीं कोई एक धमाका आवर कोई चीज लगा देता है तो इसके अंदर कोई क्या कर सकता है? क्योंकि ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है, आप उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बीट नहीं कर सकती। इसलिए ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई आप देख लीजिए कि ये कितने बुज़दिल हैं कि ये बच्चों को निशाना जो है वो बना रहे हैं। पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर का वाकया था, जो तब भी भारत उसके अंदर इन्वॉल्व था। हालांकि उस टाइम पे विक्रम सूद जो कि उनका साबिक इंटेलिजेंस और जो है चीफ रहा, उसने 10:30 बजे सुबह जो है वो एक ट्वीट किया था कि मोर कैजुअलिटीज एंड मोर एक्सप्लोजन एक्सपेक्टेड एट आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर, यानी कि ज्यादा धमाके और ज्यादा जो अमवात हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बात को हमने क्यों नहीं इंटरनेशनली इसको केस को लेके गए, क्यों नहीं हम कुलभूषण यादव को फांसी लगाते, उस महात्मा को हमने क्यों बना के रखा हुआ है? क्या हमने नहीं देखा कि अजमल कसाब और उसके लोगों को उन्होंने फांसी लगा के वो फारिग किया? तो फिर आप मुझे बताइए कि इसके अंदर हमने क्यों, जब एक आदमी का एतराफी जुर्म मौजूद है, एक आदमी का, लेकिन हम तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं।
हम अभिनंदन को वापस करते हैं, हम कहते हैं दुनिया हमारी बड़ी तारीफ करेगी। क्या तारीफ की हमारी? किसी ने तारीफ करना तो दरकिनार, किसी ने बोला कि भारत ने आपके मुल्क पे जुल्म किया, आपकी इंटरनेशनल टेरिटरी को वायलेट किया और 26 फरवरी को आके जो बालाकोट के अंदर हमला कर दिया 8 जहाज़ों के साथ। ठीक है कि हमने 27 तारीख को उनको तारीख का सबक जो है वो सिखाया, लेकिन हकीकत यह है कि हमने ऐसा नहीं किया। हमें उसको रखना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि दहशतगर्दों का अंजाम जो है वो पाकिस्तान आने पर अच्छा नहीं होगा। और यही बात सुषमा स्वराज ने कही थी कि कुलभूषण यादव जो है वो भारत माता का बेटा है और भारत माता इसको हर हालत में जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। 9 साल हो गए, ये मामला जो है आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा है और कुलभूषण यादव के ही ये छोड़े हुए गुमाश्ते हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये स्लीपर सेल हैं जो आज जो है वो मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हमें भी जो है, जिसको वी शुड बी रिप्लाइंग इन द सेम पॉइंट, हमें सेम जो जवाब जो जिस तरह से भारत करता है हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन हम जो है वो पता नहीं क्यों उम्मीद लगा लेते हैं दुनिया से। हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए है। अल्लाह से जो लोग उम्मीद लगाते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं, वो शुरू होते हैं। और दहशतगर्दों के जो सियासी लोग बैठे हुए हैं, देखे ना, जो उनके सियासी चेहरे हैं, जिस तरह से आरएसएस जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसका सियासी चेहरा जो है वो बीजेपी है। इसी तरीके से जो बीएलए है, बीएलएफ है, बीएलआर है या दीगर इस किस्म की तंजीमें हैं, इनका सियासी चेहरा बीवाईसी है। और जब तक कि आप उन लोगों को जो है वो उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनके जो नजरिए को जब तक आप नहीं हिट करेंगे, लेकिन कौन करेगा? आप मुझे बताएं, सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ, सानिया जाफर एक्सप्रेस में आपने वहां के लोकल को किसी जो एमएनए, एनपीए, जो सेनेटर थे जो वहां से वोट लेके निकलते हैं, क्या आपने उनको जाए वकुआ पे जाके लोगों की हमदर्दी करते, उनके खिलाफ कोई बयान करते हुए आपने सुना? कोई एक वीडियो आपके पास मौजूद है? यही हुआ ना कि सच टीवी पे बैठ के सच बोलने के लिए अब्दुल्ला गुल या दीगर लोग जो पंजाब से, सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा या फेडरल से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने बात की। बलोचिस्तान से कौन आके बात कर रहा था? क्यों नहीं कर रहा था? असेंबली में एक आध बयान देने से जो है बात नहीं बनती है। ग्राउंड के ऊपर निकल के किसी ने क्या किया? कोई किसी ने रैलियां निकाली, वो लोग जो बलोचिस्तान से इलेक्ट होके आए, जिनके ऊपर मेहरबानियां हुई, आज वो लोग कहाँ चले गए? आज क्यों नहीं मौजूद? फुलदार से आपको किसी एमपीए, एमएनए, वहां के सेनेटर का अभी तक आपको कोई मजम्मती बयान आया? क्या आपने कोई पट्टी चलाई? अगर नहीं चलाई तो फिर इसकी वजह आप समझें। इसका मतलब यह है कि ये वो लोग हैं जो रियासत पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको सब इंजॉय करते हैं, जहां पर एंड जो इनकी सहूलियात हैं वो लेते हैं बतौर अपने एक रुकन कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली, सारे फायदे लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी होती है, मासूम बच्चों को जो है वो फूलों को मस्त कर दिया जाता है, मसल दिया जाता है, जामे शहादत नोश कर लेते हैं, ये लोग खामोश रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बोलते, असल में वो भी उनको जो है वो एक किस्म की तकवीत पहुंचा रहे होते हैं। तो ये वक्त आ गया है कि हमें खुल खेल के जो है आज साबित कर देना पड़ेगा, क्योंकि जंगें जो होती हैं वो लोगों को बेनकाब कर देती हैं। जो लोग अच्छे होते हैं उनको भी, जो उनकी सलाहियतें होती हैं उनको भी बेनकाब करती हैं। जिस तरह से जनरल सैयद आसिम मुनीर, जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, उनकी सलाहियतों को उजागर कर दिया और दुनिया ने देख लिया कि वो कैसे हैं और वो कैसे एक अच्छे फौजी हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जो सोशल मीडिया पे बैठ के या भारत और पाकिस्तान की उसके बावजूद वो नफरतें फैला रहे थे, तो उनको भी लोगों ने देख लिया। तो सर, वो एग्जैक्टली अब्दुल्ला गुल साहब, कथा कलामी की माजरत, वक्त थोड़ा कम है। चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल बजा फरमा रहे थे। हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को एक बार फिर से न सिर्फ याद करने की ज़रूरत है बल्कि इस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ज़िला खुजदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर 5 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 बच्चे भी